So let's start with question answers of chapter Thunder Cake, because someone has asked me on YouTube to make a video on this chapter. So here I am. So let's start with part A. Choose the right options to complete these sentences. Okay kids, अगर बेटा आपने thoroughly इस chapter को read किया है ना, तो it's very simple to answer all these questions, because it is a lovely chapter of having a good story, so it is very easy. So first you thoroughly read this chapter. Okay, first है the child's grandmother lived in. ओके अगर आपने इसको थोरली पढ़ा हुआ है तो आपको इवन सारे ऑप्शंस देखने की भी नीड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर एक आंसर आपकी फिंगर टिप्स पे ऑलरेडी होना ही चाहिए. तो द चाइल्ड्स ग्रैंड मदर लिव्ड इन, टेल मी वेयर शी लिव्ड इन. शी लिव्ड इन अ फार्म हाउस इन, yes you're right, Michigan. Okay, the answer will be D. Second, although the child loved visiting her grandmother, she was scared of. Okay, tell me what she was scared of. Is it the flashes of lightning? No. Yes, it is the part of the chapter that there is flashes of lightning in the sky, but she was not scared of this type of things unless she is scared of the sound of thunder, which is the B option. And C option said the shuddering of windows. No, shuddering of windows is also the part of this chapter, but she was not scared of this at all. And the D part is the fierce rain. No, this is not the part of the chapter even, so the answer will be the sound of the thunder. Okay, let's start part B. Fill in the blanks with the ingredients the grandmother collected for her cake as the storm drew closer. ओके, इंग्रेडिएंट्स उन्होंने जो जो गैदर किए हैं वो बतानी है. तो बिफोर यू सी द क्वेश्चंस यू ऑलरेडी मेक अ लिस्ट एट योर ओन. Firstly, they gather the eggs from the Neil Peck hen, and then they go for the milk, and then they gather the three main ingredients, which is sugar, chocolate, and then tell me flour. Okay, this will be your list at your fingertips every time, because this is very easy chapter. Okay, and you will love it. And the finally they gather the three main secret ingredients. Tell me what these are the three things. 3 overripe tomato and strawberries. Now tell me why she told it secret ingredients of the cake. Tell me. Because no one can use such type of things on their cake. Rather they use the dry fruits or the choco chips, which like the kids most. But this is the recipe of grandmother, and she uses such type of things like overripe होते हैं जो ज़्यादा पके हुए होते हैं. ठीक है, तो उसने वो यूज़ किए हैं, which is the secret ingredients. Okay, and one internal question should be there on secret ingredients. So you already learn these things fully. Three things: 3 overripe tomatoes and strawberries. It will help you a lot. Okay, let's start part C. Rearrange the sentences in order in which they took place in the story. अब स्टोरी में वो जैसे जैसे आए हैं वैसे आपने उसको बताना है. अभी देखो बेटा, आप इन सब पॉइंट्स को पढ़ोगे, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही थॉरोली इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप खुद ही एक लिस्ट बना सकते हो कि क्या क्या हुआ था. देखो, सबसे पहले क्या था, जैसे ही साउंड थंडर की सुनाई दी, गर्ल जो है वो स्केयर्ड हो गई. तो फर्स्ट इसमें से ढूंढो, आप सारे मत पढ़ो, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगे शायद ये भी पहले नंबर पे आ सकता है, ये भी आ सकता है. तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको चैप्टर में जाओ यार दोबारा से, और फिर उसको ढूंढो कि हाँ ये वाला आंसर, हाँ अब मेरा ठीक है. क्योंकि आपको श्योर होना चाहिए आपके आंसर पे. बेटा आपने सीखना है, ये नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी तो आपने यहाँ से किया, टिक कर लिया, आंसर फिल कर लिए. दैट्स नॉट द राइट वे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. यू शुड ट्राई एट योर सेल्फ. आपको सीखना है, इस लेवल पे आप 5th में आ गए हो, आपको सीखना है. अब
क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपको एनसीईआरटी की बुक्स फेस करनी है और एनसीईआरटी की वर्डिंग्स बेटा थोड़ी टफ होती है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना है कि अब आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जब तक आपको खुद नहीं होगी लगन अंदर से करने की, नो वन कैन हेल्प यू। ओके, तो आपको देखो, आपने सबसे पहले चैप्टर के अंदर फिर से जाना है, उसमें फिर से स्नीक पिक करनी है कि उसके अंदर क्या हुआ। सबसे पहले गर्ल जो है वो थंडर साउंड से डर गई थी। उसके बाद फिर ग्रैंड मदर ने सोचा कि मेरे को इसका ध्यान किसी और जगह ले जाना चाहिए इंटरेस्टिंग वे में, ताकि ये डरना बंद करे। ठीक है, सेकंड थिंग वो हो गई। तो उसने ध्यान को सोचने से पहले उससे बोला कि हाँ थंडर केक हमें बनाना चाहिए। ओके, तो ये सेकंड हो गई। थर्ड हो गई कि उसने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की ग्रैंड मदर ने, ठीक है, इन एन इंटरेस्टिंग वे। एंड फोर्थ, उन्होंने सब चीज़ें गैदर की, ठीक है, और जब उन्होंने केक को बना लिया तो गर्ल है वो कभी भी थंडर से नहीं डरी। तो ऑल द पॉइंट्स यू कैन हैव। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है द ग्रैंड मदर टोल्ड द चाइल्ड दैट दे वुड बेक अ थंडर केक। थंडर केक वो बनाएंगे, लेकिन क्यों बनाएंगे? क्योंकि फर्स्टली तो वो डरी थी ना, तो ढूंढो। थर्ड में देखो, द चाइल्ड नेवर फियर्ड द साउंड ऑफ थंडर अगेन, नहीं, ये तो लास्ट में आएगा ना। इसके बाद फोर्थ है द ग्रैंड मदर नोटिस दैट द चाइल्ड वाज स्केयर्ड। यस, फर्स्ट ये होगा कि वो स्केयर्ड हुई थी। सेकेंड है द ग्रैंड मदर ट्राइड टू कीप द चाइल्ड बिजी बाय आस्किंग हर टू गेट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर द केक। इंग्रेडिएंट्स तो बाद में आएंगे ना, पहले तो उसने उससे बोला ना कि हम थंडर केक बनाएंगे। तो सेकंड नंबर पे आएगा द ग्रैंड मदर टोल्ड द चाइल्ड दैट दे वुड बेक अ थंडर केक। ओके, फिर उन्होंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने हैं, तो फिफ्थ वाला आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा द थंडर केक, द ग्रैंड मदर मिक्सड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द केक, ठीक है, उन्होंने मिक्स किया। फिर लास्ट वन, द चाइल्ड नेवर फियर्ड द साउंड ऑफ द थंडर अगेन, इट विल बी द लास्ट। ओके बेटा, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लो, समझ लो, तो आपको ऑप्शंस देखने से पहले खुद ही अपने माइंड में आंसर को बनाना होगा, चैप्टर में फिर से जाना होगा, खुद की एक लिस्ट बनानी होगी, तो आप ऑप्शंस को देखोगे। अदरवाइज आप हर मोड पे फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि शायद ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ओके बेटा, अब सीखो, अब सीखने के टाइम हो गया है। लेट्स स्टार्ट पार्ट डी। Write these sentences from the story and answer the questions that follows. Okay, first है, unless you let go of me we won't be able to make a thunder cake today. अब देखो, इसकी हिंदी बनाओ, पहले इसको समझो। हिंदी का मीन्स ये नहीं है कि आप जो है इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहते हो, करना चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये होना चाहिए, बट अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तो हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, अनलेस होता है जब तक कि यू लेट गो ऑफ मी, यू लेट गो ऑफ मी वी वॉन्ट बी एबल टू, जब तक तुम मुझे जाने नहीं दोगी हम थंडर केक आज नहीं बना पाएंगे। ओके, तो हु सेड दिस एंड टू हूम? सो टेल मी। यस, यू आर राइट, ग्रैंड मदर said this to her granddaughter. Okay, second है, why was the person being spoken to holding on to the speaker? अभी देखो, अब इसकी भी देखो बेटा, आप हिंदी बना के इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर आपने इसका दूसरा कोई मीनिंग निकाल लिया तो आंसर विल बी चेंज्ड एंड इट इज टोटली रॉन्ग। ओके, तो आप ये बताओ, why was the person being spoken, जो बोल रहा था बंदा, जो भी पर्सन इस चैप्टर के अंदर है, टू होल्डिंग ऑन टू द स्पीकर, वो स्पीकर को क्यों पकड़े हुए था? स्पीकर मीन्स ग्रैंड मदर, और पर्सन बीइंग स्पोकन यानी जिसके बारे में बोला गया है, जिसके बारे में बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है? ग्रैंड डॉटर के बारे में बोला। तो वाई वॉज द पर्सन बीइंग स्पोकन, बीइंग स्पोकन का मतलब है जिसके बारे में बोला गया है, वो होल्ड क्यों किए हुए था स्पीकर को? अब बताओ, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर को क्यों होल्ड किए हुए थे? बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड ऑफ द साउंड ऑफ थंडर। ओके, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इवन मैं कहूँगी 2-3 टाइम्स पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, माइंड में उसको सेट करना है, तब आपने आंसर देना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।